A very charming good morning, dear student. I am sure that all of you are enjoying at home, strengthen the nation, and serving your loving and caring parents very well. Today I am going to revise your lesson number 1 from your Moments book. And the lesson number 1 is The Lost Child. Actually, this story is written by Mulk Raj Anand, who is an Indian writer, and he has written many different heart-touching short stories. This is one of them, a most successful story written by him. In this story, The Lost Child, the writer tries to explore the mind of a child. The story also highlights a child love for his parents. The child goes to a fair with his parents. He is very excited and wants sweets, toys displayed there. His parents don't buy these things for him, but very soon he gets separated from his parents. As he is left behind looking at various toys and other things, when he realizes that his parents are nowhere near him, he starts crying. Unconsolably, he refuses everything which is offered by others. He only wants his parents and keeps trying and keeps crying. So, dear student, really in this heart touching and full of emotions story, this story moves around a child. बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जाता है, मेले में जाता है, और वहाँ पर बच्चा खो जाता है। राइट, हमने फर्स्ट हाफ में ये शो किया है कि एक बच्चे की फीलिंग्स क्या होती है, हाउ ही हैप्पी while going to fair, and the writer has shown very beautifully his reaction towards his liking things. सेकेंडली ये शो किया है कि उसके पेरेंट्स जो कि स्ट्रिक्ट हैं, डिसिप्लिनेरियन हैं, वो उसकी किसी भी विश को पूरा नहीं करते। स्टिल जब बच्चा खो जाता है तो खोने के बाद उसकी जो सबसे बड़ी डिमांड होती है वो सिर्फ उसके पेरेंट्स होते हैं। राइटर हैज क्लियरली प्रूव्ड कि इन दिस वर्ल्ड, संसार में बच्चे को सबसे प्यारी चीज़ सिर्फ उसके पेरेंट्स होते हैं। So let's start the topic. Okay. It was the festival of spring. Spring means there are few seasons in India: winter, summer, rainy, and spring, autumn. Yeah. So spring means Basant Ritu. So it was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily-clad humanity. So it is a festival of spring and everyone is in a happy mood. Everyone is in a jolly mood. So there was a child. Wintry shades of narrow lanes. Lanes means streets, and alleys. Alleys means pagdandiyan, temporary ways to walk on. Okay, that is called alleys. Emerged a gaily. Gaily means happiness, glad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. So all the men were very happy due to the festival of spring,
and they were very happy. They were coming out of the streets through the alleys and talking with joyful with others. Now they were moving towards the fair. तो वो फेयर की तरफ कैसे जा रहे थे? Some of them were riding on horses. कुछ घोड़ों पर जा रहे थे. Others sat being carried in bamboo and bullock carts. Other people बम्बू और बुलक कार्ट्स में जा रहे थे, बैलगाड़ी पर जा रहे थे. कुछ ऑन फुट पैदल भी जा रहे थे, कुछ साइकिल पर भी जा रहे थे. तो इस तरीके से ऑल ऑफ देम वर गोइंग टूवर्ड्स द फेयर. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. ब्रिमिंग ओवर, ब्रिमिंग मीन्स फुल ऑफ, भरा हुआ. लाइफ जीवन और लाफ्ट मीन्स खुशी. एक छोटा सा लड़का अपने पापा के पैरों के आसपास दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था और वो वास्तव में बच्चा बहुत ही जॉयफुल था. चिल्ड्रंस आर ऑलवेज वेरी क्रेजी टूवर्ड्स द फेयर, स्पेशली इफ they are just offered to go out of house, even they are full of excitement. So in the same way, the main character of the story, that little boy, he was also very excited at the moment and he was running with his parents. This is the scene of the fair, as you have noticed many times. That is the little child along with his parents. Come, child, come, called his parents, as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. Before reaching in the fair, some of the hawkers has maintained their shop at the roadside. तो बच्चे ने उन रोड साइड की दुकानों पर कुछ टॉयस को देखा. टॉयस को देखकर ही वाज चार्म्ड टूवर्ड्स देम. उसके मन में आ गया कि हाँ, मुझे खिलौने भी लेने चाहिए. उनको देखने लगा. सो दैट्स वाई ही वाज लैगिंग बिहाइंड, पीछे रह गया. तब उसके पेरेंट्स ने उसको कॉल किया, कम चाइल्ड कम, चलो जल्दी करो, वी आर गेटिंग लेट, हमें देर हो रही है. ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स. हरीड मीन्स एट वंस, जल्दी से. और हियरिंग देयर कॉल, पेरेंट्स की कॉल सुनकर वो एकदम अपने पेरेंट्स की ओर चल दिया. His feet obedient to their call. Obedient mean to follow the order. उसके पैरों ने अपने पेरेंट्स की ऑर्डर को तुरंत फॉलो किया. His eyes still lingering on the receding toys. But still, बेशक वो आगे बढ़ रहा था. While moving towards, आगे बढ़ता जा रहा था पेरेंट्स से, बट उसकी जो आंखें थीं वो अभी भी उन टॉयज पर ही मूविंग अवे कर रही थी. रिसीडिंग मीन्स होता है मूविंग अवे, देखना. उन्हीं की ओर बार बार मुड़कर वो देख रहा था अपने उन टॉयज की तरफ. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, इवन दो ही वेल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज. अब as soon as the child reached to the parents where they were waiting for him, जहाँ उसके पेरेंट उसका वेट कर रहे थे, बच्चा जब वहाँ पर आया, he could not suppress mean to stop, रोकना. वो he could not suppress the desire, he could not stop his emotions, he could not stop his wish, अपनी इच्छा को नहीं रोक पाया. Even though, although he well knew, वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके पेरेंट्स कैसे हैं. ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल मीन्स दे विल नॉट फुलफिल हिज डिजायर. वो जानता था बच्चा कि पेरेंट्स उसकी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे. फिर भी ही प्लीडेड मीन्स अपील, रिक्वेस्टेड. ही प्लीडेड, आई वांट दैट टॉय. पापा आई वांट दैट टॉय. पापा मुझे वो खिलौना चाहिए. His father looked at him red-eyed. Red-eyed means लाल आंखों से, गुस्से में, in anger mood.
उसके पापा ने उसे एकदम गुस्से में देखा। इन इज फेमिलियर, फेमिलियर मीन्स वेल नोन, परिचित, सिमिलर, टायरेंट्स वे, टायरेंट मीन्स फुल ऑफ क्रुअल्टी, स्ट्रिक्ट एंड हार्श मैनर, tyrant means strict and harsh manner. So his father, when he demanded, when he appealed, when he requested for the toy, his father looked at him with anger, with eyes red with anger. His mother melted by the free spirit of the day. Melted. और उसकी जो माँ थी, she was affected by the free spirit of the day. She knew that due to the environment of the day that is very joyful, so the child has demanded for a toy. So she realized, she was melted, the day was tender, and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you. अब मदर ने उस बच्चे को, वो जानती थी बच्चा है जिद करेगा, उसने बच्चे की तुरंत हाथ में अपनी उंगली दी, बेटा देखो सामने क्या है। उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए मदर में से ऐसा करती हैं, बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ताकि पापा उसको डांटे ना पीटे ना। तो मदर डिसाइडेड टू डाइवर्ट हिज अटेंशन फ्रॉम द टॉयज टूवर्ड्स द roadside things. It was a flowering mustard field. Mustard field, mustard means सरसों होती है, सरसों के खेत होते हैं, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। It was a flowering mustard field, pale yellowish, like melting gold as it swept across miles and miles of even land. दूर दूर तक मेल्टिंग गोल्ड, मेल्टिंग गोल्ड मीन द कलर ऑफ गोल्ड, कलर ऑफ गोल्ड, गोल्ड का कलर कैसा होता है, येलो, और जो मस्टर्ड फ्लावर्स होते हैं वो येलो होते हैं। तो द राइटर हैज कंपेयर्ड द मस्टर्ड फ्लावर विद दैट ऑफ मेल्टिंग गोल्ड, मीन्स गोल्ड के कलर से, येलोइश कलर से उन्होंने उसने कंपेयर किया। एज इट स्वेप्ट एट, दूर दूर तक, there was nothing but only yellow colors flowers. So that's why the writer has compared the color of the mustard flowers to melting gold, means yellow color, color of gold, that is yellow. A group of dragonflies were bustling about. Dragonflies, long-bodied insects. Recently you have seen in the news that a number of dragonflies are approaching in India from Pakistan and they destroyed the whole field. तो dragonflies थे, were bustling about in their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly. So these long-bodied insects, means dragonfly, gaudy means bright, intercepting means interfering with. Group of dragonflies were bustling about. Bustling about means hovering, mandrana, उड़ना, bustling about. On their gaudy, gaudy means bright, चमकीले purple wings. उनके जो wings का कलर है वो कैसा था, purple. Intercepting the flight, intercepting, interfering with, intercepting the flight of a lone black bee, lone black bee, बिल्कुल ब्लैक कलर का जो बी मधुमक्खी होती है, या मीन्स हो गया उसका भौरा, और बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। बटरफ्लाई थी वहाँ पर, भौरे थे, वो वहाँ पर जो है फ्लावर्स में स्वीटनेस को सर्च कर रहे थे। The child followed them in the air with his gaze. It always happens, such things attracts the children very much. तो जब बच्चे ने उन बटरफ्लाई, कलरफुल बटरफ्लाइज को देखा, he could not stop there. He decided to go towards them. और वो उनके पीछे पीछे उन मस्टर्ड फील्ड में चला गया।
till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it. धीरे धीरे वो उनके पीछे जा रहा था बटरफ्लाइज के. जब कोई बटरफ्लाई फूल पर बैठती थी, अपने विंग्स को रेस्ट देती थी, तभी बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता था. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, लेकिन इट वॉज नेवर पॉसिबल. बच्चा जब तक उसके पास पहुंचता था वो तुरंत अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए एकदम उड़ जाते थे अप इनटू द एयर. When he had almost caught it in his hands, when the child was about to catch the butterfly, it starts to fly at once. वो एकदम हवा में उड़ जाती थी. Then his mother gave a cautionary call. Meanwhile, when he was trying to catch the butterflies, his mother called with safety in mind. Cautionary call means हो गया safety. To keep the safety in mind, she called the boy at once. Come, child, come. Come on to the footpath. Because she knew very well that in the field there may be a snake, scorpion, as well anything there may be that can be harmful for the little child. That's why she gave a cautionary call, a call full of safety. For the safety purpose she called her child, come, come on to the footpath. बेटा सड़क पर आ जाओ, खेत में नहीं जाते. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. अब बच्चा he ran towards his parents gaily means happily. बच्चा तुरंत भागता हुआ उनकी तरफ आ गया and walked abreast of them for a while, और कुछ देर तक उनके पीछे पीछे उनके साथ चलता रहा. Being however soon left behind, but उसके स्टेप छोटे थे. एंड सेकेंडली ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड द रोड साइड थिंग्स. रोड साइड थिंग्स की ओर वो बहुत अट्रैक्ट था, इसलिए बार बार वो पीछे रह जाता था बच्चा. अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड बॉम्ब्स अलॉन्ग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट मीन्स कमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेज टू एंजॉय द सनशाइन. छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि सनशाइन को एंजॉय करने के लिए बाहर आते हैं. तो बच्चा उनको देखकर उनकी तरफ रुक जाता था और पीछे रह जाता था. तो such things were diverting him very much. Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. Grove means बाग होता है. बाग में जहाँ बैठने की जगह होती है कुएं के पास, दैट इज कॉल्ड ग्रोव. बट उसके गार्जियंस, उसके पेरेंट्स ग्रोव में जाकर बैठ गए, पेड़ों की छांव में बैठ गए, और बाई एज ऑफ ए वेल, एज मीन्स किनारे, वेल मीन्स कुएं के किनारे पर जाकर बैठ गए. वहीं से उन्होंने उसका बोला कम चाइल्ड कम. तो उन्होंने वहीं से कहा कि बेटा जल्दी आओ, और बच्चा वहाँ पर आ गया. ठीक. ही रेन टूवर्ड देम. उनकी बात को सुनकर वो तुरंत वहां पर आ गया. ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव. एज सून एज द चाइल्ड एंटर्ड इन द ग्रोव ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन हिम. जो ही बच्चा उस ग्रोव में गया, बगीचे में गया, तो ही उसके ऊपर वाइट कलर के जो फ्लावर्स थे वो उसके ऊपर गिरे एकदम बारिश की तरह से. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, बच्चा इतना खुश हुआ, ही फॉरगॉट हिज पेरेंट्स एट वंस एंड स्टार्टेड टू कलेक्ट द फ्लावर्स. ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स. और उसने क्या किया, उसने अपने दोनों छोटी छोटी हथेलियों को खोलकर खड़ा हो गया, और he tried to catch the petals in his hands.
जो श्रावरिंग हो रही थी फूलों की, पेटल्स की हो रही थी, उसने उनको अपनी हथेलियों में कैच करने की कोशिश की। बट लो, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting the dove dove dove। लेकिन उसी समय उसने डव्स की कू कू की आवाज़ सुनी और वो तुरंत अपने पेरेंट्स की ओर भागता हुआ गया चिल्लाता हुआ, द डव द डव। द रेनिंग पेटल्स dropped from his forgotten hands, and while he was running towards his parents, he forgot about the petals in his hands, and all the petals fell down। सारे पेटल्स, सारे फ्लावर्स उसके गिर गए रास्ते में, बट उसने ध्यान ही नहीं दिया, अपने पेरेंट्स की ओर भागता चला गया। द डव कम चाइल्ड कम, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। Come child come, अब उन्होंने बच्चे को, पेरेंट्स ने फिर एक आवाज़ लगाई। जो बच्चा जो था इसमें, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बेनियान ट्री, बरगद का पेड़ होता है, उसके बहुत सारी जड़ बन जाती हैं, ऊपर की ब्रांचेस बहुत लंबी नीचे ज़मीन तक आती हैं। बच्चा उन वाइल्ड कैपर्स के चारों ओर घूमने लगा। एंड गैदरिंग इन अप दे टुक द नैरो बाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, वहीं से मस्टर्ड फील्ड की तरफ से होता हुआ जो एक छोटा सा फुटपाथ जा रहा था मेले की तरफ, उन्होंने वहीं से बच्चे को आवाज़ लगाई, बेटा आओ जल्दी आओ। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। As they neared the village, जब वो गांव के नज़दीक पहुंचे जहां पर मेला लगा हुआ था, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। थ्रॉन्ग्स मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल, थ्रॉन्ग्स मीन्स क्राउड। तो उसने देखा बहुत सारे रास्ते बन गए थे वहाँ पर और बहुत सारी भीड़ वहाँ पर जा रही थी। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल, कन्वर्जिंग मीन्स कमिंग टूगेदर, थ्रॉन्ग्स मीन्स क्राउड, थ्रॉन्ग्स मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स क्राउड, converging means coming together to the whirlpool of the fair। whirlpool means center of attraction, whirlpool of the fair, whirlpool means center of attraction, that was fair। converging means coming, and throngs means crowd। तो वहाँ उसने देखा बहुत सारे लोग ग्रुप ने भीड़ बनाकर वहाँ मेले की तरफ सब जा रहे थे। कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर, एंड फेल्ट एट वंस repelled and fascinating by the confusion of the world he was entering। repelled and fascinated means full of charmed। बच्चा एकदम मोहि मंत्र मुग्ध हो गया जब उसने इस चीज़ को नोटिस करा कि वो मेले में आ गया है। तो बस ही फॉरगॉट एवरीथिंग, नाउ ही वाज लुकिंग ओनली एट द फेयर। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड एज सुन एज दे एंटर इनटू द फेयर। तो वहाँ सबसे पहले स्वीट मीट सेलर, मिठाई वाले ने आवाज़ लगाई। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड ए क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। और वो वहाँ पर आवाज़ लगाकर बेच रहा था, तो उसके वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उसने अपने यहाँ जो स्वीट्स थी उनको डेकोरेट किया था किस चीज़ से, लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर की जो लीव्स होती हैं उसने उससे उसको डेकोरेट किया था।
कभी आप जाएंगे किसी स्वीट मीट से लगे दुकान पर जाएंगे, मिठाई देखेंगे तो वो क्या करते हैं, चांदी का वर्क लगाकर मिठाई को रखते हैं। इसी तरह से उस मिठाई वाले ने वहाँ पर चांदी के और सोने के वर्क लगा रखे थे, ताकि उससे उनकी जो लुक था वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया था। दैट्स वाई द पीपल वर गोइंग टूवर्ड दैट शॉप। द चाइल्ड स्टेयर्ड open eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet। और जब बच्चे ने स्वीट मीट सेलर की दुकान पर बर्फ़ी को देखा तो उसका मुंह खुला रह गया, बिकॉज जो ही उसने बर्फ़ी देखी, बर्फ़ी उसकी फेवरेट डिश थी। आपकी फेवरेट डिश क्या है? जस्ट थिंक, ऐसी कौन सी मिठाई जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? मम्मा आई लाइक रसगुल्ला, मम्मा आई लव गुलाब जामुन, मम्मा आई लव रसमलाई, व्हाट्सएवर। हर बच्चे की एक अलग मिठाई होती है जो उसे बहुत पसंद होती है, बट द हीरो ऑफ द स्टोरी लव बर्फ़ी वेरी मच। तो जो इसने बर्फ़ी को देखा, हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया। I want that बर्फ़ी, he slowly murmured, धीरे से बुदबुदाया, मुझे बर्फ़ी लेनी है। I want that बर्फ़ी, मुझे बर्फ़ी चाहिए। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded। Heeded means pay attention, ध्यान देना। Plea means appeal, request। Plea means request। Heeded means pay attention, ध्यान देना। Because his parents would say he was greedy, but being a child he knew very well the nature of his parents। जानता था उसका अपने पेरेंट्स की नेचर का, कि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, तू तो बिल्कुल लालची है, मिठाई देखते ही बस तुरंत तेरे मुंह में लार आ जाती है। इसलिए उस बेचारे ने बड़े धीमे से बात कही थी, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। So without waiting for an answer, he moved on। बच्चे ने वेट ही नहीं किया कि हाँ मेरे पेरेंट्स मुझ पर ध्यान दें, क्योंकि जानता था his parents will not pay attention at him and they will call him greedy। So he moved ahead, आगे बढ़ गया। A flower seller hugged, फूल बेचने वाले ने आवाज़ लगाई। A garland of गुलमोहर, एक garland of गुलमोहर, गुलमोहर का जो फूल होता है उसका garland, हार, फूलों का हार बेच रहा था। The child seemed restively drawn। बच्चा एकदम उसकी तरफ, फूलों को देखकर बच्चा खुश हो गया। Charmed, full of charmed। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured। धीरे से उस बास्केट की तरफ गया जहाँ पर फ्लावर्स रखे हुए थे, और धीरे से कहा, मर्मर मीन धीरे धीरे बोलना। स्पीक स्लोली, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। पापा आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो हार चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज to buy him those flowers because they would say that they were cheap। So without waiting for an answer he moved on। बच्चा जानता था कि parents will not buy the garland because parents will call that cheap है, बहुत सस्ता है, बहुत बेकार है, कोई फ़ायदा ही नहीं इसको लेने से। इसलिए he did not wait the answer of his parents and he moved on। आगे बढ़ गया बच्चा। He did not wait because he knew everything। He knew everything, that's why he did not pay attention, he did not wait and he moved on। आगे बढ़ गया। So a number of things he has noticed today in this part। When the child, where was the child going? The child was going to see the spring fair। Okay। What were the things that attracted the child on the way? रास्ते में किन किन चीज़ों ने बच्चे को अट्रैक्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे ने किस चीज़ की डिमांड की? These are the question you must kept in your mind। क्योंकि MCQs में
इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द चाइल्ड डिमांडेड फॉर, क्या बच्चे ने मांगा सबसे पहले? टॉय, बर्फी, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, नन, कुछ नहीं। बस अब आपको ये सोचना है कि बच्चे ने सबसे पहले किस चीज़ की डिमांड की थी। ओके, सो गेट रेडी फॉर दैट। आई थिंक फॉर टुडे इट्स सफिशिएंट and tomorrow I will start the rest part of the story. Till then, have a nice day. Goodbye.